عریشہ نے ناشتہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یارم نے دیکھا اس نے ایک گلاس جوس اور 2 چاٹنے والے آملیٹ کے لیے تھے بس۔ اس نے حیرت سے عریشہ کو دیکھا جو کھڑی اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جتنا اس نے کھایا تھا اس کی صحت اتنی ہی تھی بس۔ کافی ٹیسٹ ہے یارم سلطان کے ہاتھوں میں، ان فیوچر کام آئے گا۔ عریشہ نیپکن سے اپنے ہونٹ تھپ تھپاتی مسکرا کر بولی تو اس بار المیر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شٹ اپ! یارم نے پہلے عریشہ اور پھر المیر کو گھور کر کہا تو وہ سوری کہتا واپس ناشتے کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ زاویار خاموش بیٹھا ہانم کو دیکھ رہا تھا جو سنجیدگی سے اب ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا دور سے اسے مسکراتے ہوئے، اور یہ بھی کہ اس کے آتے ہی ہانم کی مسکراہٹ کس طرح سے سمٹ گئی تھی۔ ارے مس عریشہ، آپ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ بیٹھے ہمارے ساتھ، المیر نے کہا تو عریشہ نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے جانا ہوگا، میرا شوٹ ہے، عریشہ نے کہا تو یارم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ کیوں بھول گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی وہی پرانی عریشہ ہے جو بولڈ تھی، نازیبا لباس پہنتی تھی۔ یارم کے سوچتے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے گلاس منہ سے لگا لیا۔ اب میں چلتی ہوں، بائے ایوری ون۔ بائے مسٹر یارم، عریشہ نے آخر میں ذرا سا جھکتے کہا تو یارم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں کا اچانک سرد پن محسوس کرتے عریشہ چونکی۔ اس سے پہلے تو وہ بھلے اسے گھور رہا تھا لیکن آنکھوں میں سختی نہیں تھی، جبکہ اب اس کی آنکھوں میں سختی دیکھ عریشہ کی مسکراہٹ بھی پھیکی پڑی۔ خدا حافظ، یارم نے ناشتے کی طرف متوجہ ہوتے سرد آواز میں کہا تو المیر نے بھی مسکرا کر اسے بائے کیا، جبکہ زاویار بھی اس بار مسکراتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ خیال سے جائیے گا، زاویار نے کہا تو ہانم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک غیر لڑکی کا بھی اسے خیال تھا، لیکن اسے وہاں اکیلے چھوڑتے اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اکیلی ہوگی۔ زاویار کی نظر اس پر پڑی تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ عریشہ وہاں سے نکل گئی تھی جب اچانک ہانم کے دماغ میں دھماکہ وار اس نے یارم کو دیکھا۔ یارم بھائی، پھپھو اور زید، مجھے گھر جانا ہوگا، رات سے صبح ہو گئی، وہ گھبراتے ہوئے بولی تو یارم نے اس کی ٹینشن پر ماتھے پر بل ڈالے۔ ناشتہ کرو آرام سے، میں تمہیں گھر چھوڑنے خود جاتا ہوں، یارم نے اسے نرمی سے کہا تو زاویار بھی اسے دیکھنے لگا۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا ہانم سے لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ رات سے ہی یارم کا فون رنگ ہوا تو اس نے اٹھانے سے پہلے ہانم کو دیکھا۔ میں بس 10 منٹ میں آتا ہوں، ہنی آپ ویٹ کرو پھر چلتے ہیں، یارم نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ المیر نے ایک بار پلٹ کر ہانم کو دیکھا جو اب پریشان سی بیٹھی تھی اور دوسری نظر زاویار کو جو ہانم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں یار، مجھے بھی ضروری کام تھا تو میں بھی نکلتا ہوں، المیر بہانہ بناتا اٹھ کھڑا ہوا تو زاویار اور ہانم دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پریٹی ہانم، اپنا خیال رکھنا، اور آئندہ اگر تم بھوکی رہی تو میں تمہیں اتنا کھانا کھلاؤں گا کہ تم پیٹ پکڑ کر بیٹھ جاؤ گی، سمجھی تم؟ المیر نے اسے پیار سے سمجھاتے کہا تو وہ صرف مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ بھی تو زاویار کا ہی بھائی تھا، لیکن ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک نے اسے نہ کھانے کی سزا دی تھی تو دوسرا خود اپنے ہاتھ سے بنا کر لایا تھا۔ ہانم نے تلخی سے سوچتے سر جھٹکا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی بے رخی زاویار نے بخوبی محسوس کی تھی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بڑھا۔ جب ہانم نے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کرنا چاہا تو زاویار نے دروازے پر ہاتھ رکھتے اسے دروازہ بند کرنے سے روکا اور اندر بڑھا تو ہانم پہلے تو حیرانی اور پھر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس شخص سے وہ مر کر بھی کلام نہیں کرے گی، مجھے تم سے بات کرنی تھی، زاویار نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر دروازے پر کھڑے کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئے لیکن جواب کوئی نہ دیا۔ وہ قدم بڑھاتا اندر آیا تو ہانم نے خاموشی سے پیچھے قدم لیے۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے، زاویار نے بات شروع کرتے کہا تو وہ اس کے جواب میں کچھ نہ بولی۔ زاویار نے اس کی خالی خالی نظروں کو دیکھا جن کی چمک کل خود ہی اس نے چھینی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جانتا تھا تم وہاں، میں سمجھا تم چلی گئی، بس اس لیے میں بھی وہاں سے چلا گیا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ایک قدم اس کے قریب بڑھتا بولا تو وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کی بات کو سن کر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ تم سن رہی ہو نا، میں نہیں جانتا تھا، زاویار نے اپنے لہجے میں بے بسی کی رمق سموئے کہا، لیکن وہ خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ زاویار نے مزید 2 قدم اس کی طرف بڑھائے تو ہانم پھر خاموشی سے ایک قدم پیچھے کر گئی، جسے دیکھ زاویار نے دانت بھینچے۔ وہ اسے جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ زاویار نے اس کے بازو کو تھامتے اسے اپنے قریب کیا تو وہ لڑکھڑا کر اس کے قریب آ رکی، آنکھیں معمول سے کھولے وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کہہ رہا ہوں نا میں، جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ زاویار نے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو اچانک اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ آپ نے کہہ دیا اور میں نے سن لیا، اب چھوڑے مجھے۔ ہانم نے دانت پیستے ہوئے اپنا بازو چھڑانا چاہا جب اس کے لفظوں پر زاویار نے اپنی پکڑ اس کے بازو پر سخت کی تھی۔ صرف سن لیا، کچھ کہو گی نہیں؟ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ نرمی سے پوچھا
तो हानम की नम आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। मेरे कहने से आपकी अकड़ और अना को कहीं चोट ना लग जाए और आप फिर मुझे कोई सज़ा ना सुना दे, इसलिए रहने दे और छोड़े मुझे। हानम दबी दबी आवाज़ में चीखी कि जावियार ने उसे नरमी से थामा और अपने करीब किया। आई एम सॉरी, प्लीज़। जावियार ने उसके चेहरे के सख्त तासुरात देखते नरमी से कहा तो वो हैरत से उसे देखे गए। उसे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा था? सर, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। आपको कौन सा फ़र्क पड़ता है? अगर मैं वहाँ पड़ी मर भी जाती, हानम ने घबरा कर कहा और ख़ुद को छुड़वाना चाहा, जबकि उसकी सांसें भी वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसकी बात सुनते जावियार के दिल में चुभन हुई। अचानक आंखों के कोने सुर्ख हुए। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं, वो दांत पीसते गुस्से से कहते रुक गया, जबकि उसकी बात पर हानम की सांसें और धड़कन दोनों थम गई। तो मैं खुद भी मर जाता। वो उसकी आंखों में देखते बोला कि हानम आफंदी को लगा कि दिल दोबारा धड़केगा ही नहीं, सांसें दोबारा रवां होगी ही नहीं। वो साकित सी जावियार सिकंदर को देखे गए। मेरी सांसें भी रुक जाती। वो उसकी रुकी सांसें महसूस करते बोला। तो हानम आफंदी ने सांस छोड़ते फिर गहरी सांस ली। तो क्या वो फिर से ख्वाब देख रही थी या फिर वो जागती आंखों से सपना देख रही थी? मैं नहीं चाहता, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ज़्यादा। सुबह से ही सारा गुस्सा तुम्हारी जान पर निकालता रहा कि शायद कम हो, और उसमें इतनी बड़ी गलती कर गया। जावियार ने बेबस लहजे में उसे थामे कहा, जबकि वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। मैं जानता हूँ कि अलमीर मुझसे बहुत अच्छा है, वो हर लिहाज से अच्छा है, लेकिन वादा करो तुम उसे हाँ नहीं कहोगी। तुम नहीं कहोगी ना? वो हैरानगी से उसे देखने लगी। वो क्या कह रहा था? नासमझी से हानम के माथे पर बल पड़े सुनकर। मैं जानता हूँ मैं बहुत गुस्सा कर जाता हूँ। आई एम सॉरी। मैं पता नहीं कैसे खुद पर काबू नहीं रख पाता। मुझे माफ़ कर दो। वो अटक अटक कर उसे अपनी बात समझाना चाह रहा था, उसकी अहमियत उसे बताना चाह रहा था, उसे अपना डर बताना चाह रहा था जिसमें गुम होते उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन न जाने वो उसे समझा पा भी रहा था या नहीं। हानम हैरानगी से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा है। अलमीर कहाँ से आ गया था बीच में, और वो क्या उससे इजहार कर रहा था? हानम के होंठों पर कुफ्ल लग गया। वो कुछ नहीं कह पा रही थी जब दरवाजे के बाहर से यारम की आवाज़ आई और वो हड़बड़ाती पलटी। जावियार से झटके से दूरे। जी यारम भाई, मैं आती हूँ। हानम ने जावियार को देखते बाहर तेज़ आवाज़ में यारम से कहा, जबकि जावियार खामोशी से खड़ा उसी को देख रहा था। ठीक है, मैं कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ, यारम कहता बाहर बढ़ गया। यारम के कदमों की चाप दूर होती महसूस हुई तो वो हड़बड़ाती दरवाज़ा खोलने लगी। जब जावियार ने उसका हाथ थामा और हानम को लगा जैसे करंट दौड़ गया उसके छूने से। तुमने जवाब नहीं दिया। जावियार ने माथे पर एक बल डाले बेचैनी से पूछा तो हानम नासमझी से उसे देखती अपना हाथ छुड़वा गई। कि किस बात का जवाब? हानम ने घबरा कर पूछा तो जावियार कदम कदम करीब आते दरवाजे पर हाथ टिका गया, जबकि वो दरवाजे से चिपकी हैरानगी से उसे देख रही थी। अलमीर तुमसे कुछ भी कहे तुम उसके जवाब में इकरार नहीं करोगी? वो उसे बता रहा था या हुक्म दे रहा था? हानम समझ नहीं सकी। यारम भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, रास्ता दें। हानम ने नज़रें झुकाए सर्द लहजे में कहा तो जावियार 2 लम्हे उसे देखता रहा, फिर 2 कदम दूर हुआ। मेरी बात याद रखना हानम आफंदी। वो जाने के लिए पलटी तो जावियार ने उसे पीछे से पुकारते कहा। हानम ने पलट कर उसे नासमझी से देखा। ये कौन शख्स था जो अपनी बेकरारियां, अपना खौफ उसके गोश गुजार कर रहा था? ये वो मगरूर अनापरस्त जावियार सिकंदर तो ना था? वो कई लम्हे उसे देखती रही और फिर खामोशी से पलटते बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि जावियार सिकंदर उसे नज़रों से ओझल होने तक देखता रहा। और आज जावियार सिकंदर पर इस बात का इदराक हुआ कि हानम आफंदी की सांसें उसकी अपनी सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं उसके लिए। वो दोनों उस वक्त सफ़र में थे। सारे रास्ते हानम को ज़ैद की टेंशन थी। वो कल रात दवाइयों के असर जिस गनूदगी में थी उसे सब भूल गया था, और अब ये फिक्र खाई जा रही थी कि फुप्पो फिर यारम के सामने कोई बदतमीज़ी ना कर दें। पिछली बार तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन अगर इस बार कुछ हुआ तो बख्शेगा नहीं वो। हानि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यारम ने उसकी तरफ देखते नरमी से उसे समझाया तो वो खामोशी से सर हिला गई। यही तो परेशानी थी कि वो था। अगर वो अकेली होती तो फुप्पो की बातों को इग्नोर कर देती, उन्हें हैंडल कर लेती, लेकिन यारम नहीं करेगा। जब उसके दिमाग में अचानक अरीशा का ख्याल आया। यारम भाई, क्या आप और अरीशा एक दूसरे को पसंद? हानम ने यारम की तरफ देखते हुए चेहरा मोड़कर हिचकिचाते सवाल किया तो यारम ने पलट कर उसे देखा। ऐसा कुछ नहीं, वो लड़की बेवकूफ़ है और तुम जानती हो ऐसी लड़कियां हरगिज़ मेरी पसंद नहीं हो सकती।
यारम की नीली आंखों में कल रात का मंजर लहराया था, जब वो ठिठुरती ठंड में भीगा वजूद लिए हानम को सीने से लगाए बैठी थी। और कल रात उसकी खिलखिलाती हंसी जावियार ने सोचते सर झटका था। लेकिन भाई, अरीशा बहुत अच्छी है, इतनी प्यारी है, माशाल्लाह से कितनी हसीन है, आपके साथ बहुत प्यारी लगेगी। हानम को यह सुनते बुरा लगा था कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, जबकि आज सुबह नाश्ते के मंजर के बाद तो उसे यकीन था कि यारम और अरीशा के बीच पसंदीदगी है। और उसे खुशी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अरीशा उसे खुद भी बहुत पसंद थी। हानम की बातें सुन अरीशा का नाजुक हसीन सरापा उसकी आंखों के सामने आया था। लेकिन फिर वो फंक्शन वाली रात याद करते यारम ने आंखें घुमाते नफ़ी में सर हिलाया। नहीं हानी, दुनिया जहान में ऐसी खूबसूरती भरी पड़ी है, मुझे ऐसी ज़ाहिरी खूबसूरती से कोई गर्ज नहीं। यारम ने तंजिया कहते सर झटका कि हानम भी खामोश हो गई। क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा होता तो मैं खुद भी मर जाता, मेरी सांसें भी रुक जाती। हानम ने आंखें बंद करते सर सीट से लगाया तो उसके कानों में ये अल्फाज गूंजे, और हानम को लगा जैसे सारे गिले शिकवे मिट गए हों, दिल पर सुकून बनकर उतरे थे उसके ये अल्फाज। तो क्या वो इतनी अहमियत रखती थी उसके लिए? हानम मुस्कुराई उसके लफ्ज़ों को याद करके, जब अचानक गाड़ी रुकी थी। आंखें खोलते देखा तो ख्वाबों की दुनिया ने असल जिंदगी में लापटका था। गाड़ी उसके घर के बाहर आ रुकी थी। वो और यारम बाहर निकले। दरवाज़ा खटखटाया तो काफ़ी देर नहीं खुला, जबकि अंदर से जैद के रोने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर में आलिया बेगम ने दरवाज़ा खोला तो हानम को सामने खड़ा देख पहले तो वो हैरान हुई और फिर गुस्से से उसे देखने लगी, जो अंदर की तरफ देख रही थी, जबकि यारम को अभी वो नहीं देख सकी थी, क्योंकि वो गाड़ी साइड पर करके उसे टेक लगाए खड़ा था। क्या करने आई है अब तू? रात पर घर से बाहर आवारा गर्दियाँ करके तुझे क्या लगा सुबह तुझे मैं घर में रख लूंगी? आलिया बेगम ने दरवाजे पर ही खड़े चीख कर कहा। तो आसपास की औरतें भी जमा हुई। अरे ये रात पर घर से बाहर थी, तोबा तोबा, ये सब क्या हो रहा है हमारे मोहल्ले में? एक औरत हानम के पीछे खड़ी होती आलिया बेगम को देखते बोली, जबकि जैद आलिया के अल्फाज सुनता कमरे से भागा हुआ आया। हानम हानम तुम आ गई, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना डर गया था, वो दूर से ही चीखा। तो हानम ने उसे नम आंखों से देखा। रास्ते से हटे मेरे, और क्या तमाशा लगा रही हैं आप दरवाजे पर खड़ी होकर? हानम दबी दबी आवाज़ में चीखी तो आलिया बेगम मजीद फैल कर खड़ी हुई, जबकि आसपास मोहल्ले की 3-4 औरतें खड़ी तमाशा देख रही थी ये सारा। अरे बीबी निकलो मेरे घर से, बहुत देख लिए तेरे तमाशे, पता नहीं तेरी रगों में किसका गंदा खून है कि मेरे भाई की तरबियत ने भी तुझ पर असर नहीं डाला। रात रात भर घरों से बाहर रहती है। क्या समझी मैं तेरी तरह गिरी हुई औरत हूँ जो सुबह सुबह तुझ बेगैरत का वेलकम करके तुझे घर में लेकर आऊंगी? आलिया बेगम अब की बार चीखी थी कि यारम, जो हानम को अभी तक दरवाजे पर लेकर खड़ा परेशानी से देख रहा था, आलिया बेगम की चीखों पुकार सुन हानम के पास आया। क्या हो रहा है ये? कुछ औरतें वहां खड़ी एक जवान खूबसूरत मर्द को हानम के साथ खड़ा देख मुंह पर हाथ रखती हानम को देखने लगी। अरे आलिया बाजी, ये जवान मर्द कौन है हानम के साथ? एक औरत की पीछे से आवाज़ उभरी तो यारम ने पलटकर खूंखार नज़रों से उस औरत को देखा, जो फौरन उसकी नज़र का मतलब समझती खामोश हुई। जब आलिया बेगम के दिल में भी खौफ पैदा हुआ यारम को देख, लेकिन फिर वो खुद को संभालती चेहरे पर गुस्सा सजा गई। देखो यारम, अब मैं इसको यहाँ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये रोज़ रोज़ के चोंचले बस बहुत हुए। ये रोज़ लेट आएगी और तुम रोज़ इसकी हिमायत लिए चले आओगे। ये सब नहीं चलेगा अब यहाँ पर। मैं मुअज़्ज़िज़ लोगों के बीच रहती हूँ, अब ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। आलिया बेगम ने गुस्से से कहा तो यारम ने सख्त नज़रों से उन्हें देखा। हानम यहाँ किराए पर नहीं रहती है, इसका अपना घर है ये, और आप इसकी फुफ्फो हैं। आपको ज़रा फिक्र नहीं कि ये रात कहाँ थी और किस हाल में थी? उल्टा आप यहाँ खड़ी सबके सामने तमाशे लगा रही हैं। यारम ने सख्त लहजे में कहा। अरे भाई तुम कौन हो? किसी गैर मर्द के साथ ये रात गुजार कर सुबह आई है, ये अच्छी लड़कियों के तौर तरीके नहीं होते हैं। हमारे घर में भी जवान बच्चियां, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, ले जाओ इसे यहाँ से। एक औरत ने गुस्से से आगे होते हुए कहा तो आलिया बेगम को दूसरी औरतों से हौसला अफजाई हुई। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये यहाँ नहीं रहेगी अब। आलिया बेगम ने गुस्से से बोला तो जैद भागा हुआ आया और पीछे से आलिया बेगम को धक्का देते हानम के पास आया और उसके गले लगा। मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे बाबा का घर है, जैद ने गुस्से से कहा तो हानम ने रोते हुए उसे सीने से लगाया। तुझे यहाँ रहना है तो तू रह ले, लेकिन ये लड़की मेरे भाई का खून नहीं है। ऊपर से आवारा बदचलन कहीं की, रातों को घूमती फिरती है और सुबह होते ही घर आ जाती है। आलिया बेगम फुंकारते हुए बोली तो यारम गुस्से से चीखा कि वो बिदक कर दूर होती, दिल पर हाथ रख गई।
बंद करें अपनी बकवास, ये नहीं रखना चाहती तो मत रखे इसे यहाँ, लेकिन अगर हानम के किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला ना, ज़ुबान खींच लूँगा मैं आपकी। यारम गुर्राया तो हानम रोती जैद को खुद में छुपा गई। उसकी वजह से क्या जैद भी दरबदर होता, ये घर उसका नहीं था लेकिन जैद का तो था ना। नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। फूफो आप अंदर चले, हम आराम से बात करते हैं, बैठ कर बात करते हैं, मैं आपको सब बताती हूँ। हानम ने बात सुलझाना चाहा। अरे बस कर, ले निकल अपने इस नाम के भाई को यहाँ से और चल। पता नहीं ऐसे कितने भाई तूने बनाए हैं, मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो। आलिया बेगम बोल ही रही थी कि यारम हानम को साइड पर करते धाड़ा था। आलिया बेगम का मुंह बंद हुआ जबकि आंखें फाड़े वो यारम को देखती साकित सी हुई थी। चलो हानम यहाँ से, वरना मैं इस औरत को जान से मार दूंगा। यारम ने आलिया बेगम पर अपनी नज़रें गाड़ते हुए गुस्से से कहा तो उन्होंने थूक निकला था, आप जैसी औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, और ना आप जैसे लोगों को कोई बर्दाश्त भी नहीं करता है। यही वजह थी कि आप अपना घर भी नहीं बसा सकें। आप जैसी औरतों को यही सज़ा होनी चाहिए कि अकेली पड़ी रहें तनहा किसी कोने में कहीं भी। यारम सर्द आवाज़ में उन्हें तल्ख हकीकत से आगाह करता हानम और जैद को अपने साथ ले गया। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती और आलिया बेगम जैसी खातून की यही ज़िंदगी थी। वो खामोशी से यारम की सख्त बातों को बर्दाश्त करती दरवाज़ा बंद कर गई। पूरे रास्ते हानम और जैद कुछ नहीं बोले, जबकि हानम के आंसू टप टप गिर रहे थे। वो उसके लिए शर्मिंदगी का मकाम था जो वो बहुत मुश्किल से अपने अंदर उस एहसास कमतरी को मार कर खड़ी होती थी। अगले ही दिन आलिया बेगम के लफ्ज़ों से वो फिर ढह जाती थी। अगर वो रोड से पड़ी मिली थी तो उसकी अब तक की सारी ज़िंदगी में बस यही पहचान रह गई थी। आलिया बेगम ने इस बात का हर लम्हे उसे एहसास दिलाया था कि वो सर उठा ही ना सकी। उसे डर था कि किसी को उसकी पहचान न पता चल जाए। उसकी इज्जत नफ्स को हर बार ये बात ठेस पहुंचाती थी। क्या कसूर था उसका? वो तो जानती तक ना थी कि उसके माँ बाप कौन थे, वो कहाँ थी, क्या थी, कहाँ से आई थी, किसके गुनाह की निशानी थी या किसी हादसे का शिकार। लेकिन इसमें उसका क्या कसूर था? कहाँ उसका कसूर था? उसकी पूरी ज़िंदगी एक सवालिया निशान बनकर रह गई थी। उसके दामन से ये दाग कभी भी नहीं मिट सकता था। यारम ने अपने पोर्च में आते गाड़ी रोकी और बाहर निकलते पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो जैद और हानम बाहर आए। हानम का झुका सर ना उठा था शर्मिंदगी से। वो हरगिज़ भी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ आए। अगर यारम ना होता तो वो यकीनन सब संभाल लेती, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। जबकि इस बार आलिया बेगम ने अपनी हर हद पार कर दी थी। यारम खामोशी से लिए उन्हें अंदर बढ़ा तो सना बेगम वहीं सोफे पर परेशानी से बैठी थी। यारम को देखते उठकर उसके पास आई, जबकि पीछे हानम और जैद को देख वो काफ़ी हैरान हुई। यारम बेटा, कहाँ थे तुम सारी रात? बेटा तुमने तो कहा था थोड़ी देर में आ जाओगे और अब आ रहे हो। और हानम और जैद बेटा, खैरियत तो है? आओ अंदर आओ। सना बेगम यारम से कहती हानम और जैद को लेकर अंदर आई तो सब सोफे पर जा बैठे। यारम ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी हकीकत सना बेगम को बताई तो वो हैरानी से सुनती हानम को देखने लगी जो सर नीचे झुकाई शर्मिंदगी से आंसू बहाई जा रही थी। हानम बेटा, कैसी हो तुम अब? सना बेगम उठती हानम के पास बैठी और उसे खुद से लगाया तो वो फूट फूट कर रो दी। नहीं बेटा, रो मत, तुमने तो हमें पराया ही कर दिया बेटा। क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं थी? मेरे पास आती बेटा। आलिया बाजी तो शुरू से इतनी कड़वी जुबान बोलती हैं। उनके साथ तुम दोनों को अकेला देखकर मैं खुद भी परेशान हो गई थी कि तुम दोनों कैसे रहोगे उनके साथ। सना बेगम ने उसकी पीठ सहलाते परेशानी से कहा तो वो आंसू ना थमे थे। नहीं बेटा, रो मत, तुमने तो हमें पराया ही कर दिया बेटा। क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी ना थी? मेरे पास आ जाती बेटा। आलिया बाजी तो शुरू से इतनी कड़वी जुबान बोलती हैं। उनके साथ तुम दोनों को अकेला देख मैं खुद भी परेशान हो गई थी कि तुम दोनों कैसे रहोगे उनके साथ। सना बेगम ने उसकी पीठ सहलाते परेशानी से कहा तो उसके आंसू ना थमे। तुम्हें पता है हानम, कल रात से ही वो पूरे मोहल्ले में तमाशा लगा रही थी। उन्होंने एक एक घर जाकर बताया कि तुम घर पर नहीं हो और सब तुम्हारे बारे में इतनी गलत गलत बातें कर रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि एक एक का पत्थर से सर फाड़ दूं। जैद ने आंसू पोंछते हुए बताया तो हानम के रोने में मजीद रवानी आई। वो औरत इस लायक हरगिज़ नहीं है कि तुम दोनों उनके साथ रहो। तुम यहीं रहोगे, आनी होती है ना यहाँ, तुम दोनों यहाँ आराम से रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। यारम ने ज़रा सख्ती से अपना फैसला सुनाया और उठता कमरे की तरफ बढ़ गया। आनी, हम यहाँ नहीं रह सकते, प्लीज़ यारम भाई को समझाएं। हानम ने फ़ौरन उसके जाते सना बेगम को कहा तो वो आंसू पोंछती नफ़ी में सर हिला गई। मैं हूं ना यहाँ, तुम मेरे साथ रहोगे, बस अब परेशान नहीं हो और ज़्यादा मत सोचो। सना बेगम ने जैद को भी अपने साथ लगाया तो हानम खामोश होती दोनों को देखने लगी। पता नहीं आगे और क्या क्या परेशानी उसके नसीब में लिखी थी।